So hello everyone. At this class I am going to discuss about domain and ranges. How to find the domain and range of a function. ठीक है. So already relations and function तो चैप्टर शुरू कर दिया, कंप्लीट भी होने वाला है. तो इसका लास्ट जो पार्ट बाकी था कि एक फंक्शन से कैसे डोमेन एंड रेंज निकाला जाता है. We all know about domain and range, that is in ordered pair. If you take one ordered pair, the x coordinate of the ordered pair is called domain, whereas the y coordinate of the ordered pair is called range. That is we know. लेकिन एक फंक्शन से कैसे ये डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट किया जाता है. डोमेन मीन्स याद रखना द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और यू कैन से द एक्स कोऑर्डिनेट. And range means the second element of the ordered pair. That means you can say y coordinate. ठीक है. तो कैसे डोमेन एंड रेंज एक फंक्शन से निकाला जाता है. Suppose there is one function given, that is find the domain and range of the real function defined by f of x is equal to mod of x minus 1. One function is given in the question. Okay, the question is find the domain and range of the real function. तो that means इसका मतलब है कि ये फंक्शन से जो डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है, those domain and range must be real. रियल फंक्शन का मतलब है कि डोमेन एंड रेंज भी रियल होना चाहिए. If the function is real function, which means the domain and range of the real function must be real only. ठीक है. तो ये बात याद रखना है. क्वेश्चन इसीलिए ठीक से पढ़ना पड़ता है जब डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. सो सिंस वी ऑल नो दैट डोमेन मींस एक्स कोऑर्डिनेट एंड रेंज मींस वाई कोऑर्डिनेट, तो चलो कैसे निकाला जाता है एक फंक्शन से डोमेन एंड रेंज, ये मैं सिखाता हूं. ठीक है. सो हियर द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. So this is a modulus function, or you can say absolute function. Yes, ये modulus function है. एक बात हमेशा याद रखना है कि in case of any modulus function, the domain is always real number. Domain is always real. क्यों real होगा? Domain means what? The x coordinate only. Look at here. x का कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगा ना. कोई भी वैल्यू पुट करो मॉडुलस के अंदर, वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. कोई भी वैल्यू, तो मतलब डोमेन ऑफ एनी रियल फंक्शन, नॉट ओनली दिस मॉडुलस फंक्शन, आई विल गिव अनदर मॉडुलस फंक्शन, उसमें भी डोमेन हमेशा रियल होता है. ओके. द डोमेन ऑफ एनी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज रियल बिकॉज the function will satisfy for any real values of x. The function will satisfy for any real values of x. Is it okay? Once again I am repeating, for any modulus function domain is always R. That means real number. You can write real or you can write capital letter R also. इसका मतलब real ही होगा. ठीक है. So the given function is defined for any real values of x. तो जब भी एक फंक्शन से डोमेन फाइंड आउट करने के लिए देगा तो किसका वैल्यू चेक करना है? x का वैल्यू चेक करना है. ओके. सो हियर वी कैन क्लियरली से दैट द गिवन फंक्शन f of x is defined for any real values of x. कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये हमेशा डिफाइंड होगा. ये हमेशा डिफाइंड होगा. मीन्स यू विल गेट रियल फंक्शन ऑलवेज. ओके. सो दैट इज व्हाई फॉर एनी मॉडुलस फंक्शन डोमेन इज ऑलवेज आर, दैट इज रियल नंबर. Whereas in case of range, look at here, how to find the range. To find the range of any function, we have to consider it like this. Let y is equal to f of x, because range means y coordinate only ना. तो इसीलिए y is equal to f of x consider कर लेना है. That is y is equal to, now put the value of f of x, what is given in the question? Mod of x minus 1. Alright. So हम लोगों को अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये जो पार्ट है ये मैं रेंज के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं. ऑलरेडी डोमेन निकाल दिया ना. d of f of x means it is the domain of the function. Okay. Now I am going to explain how to find the range. So this is the first step to find out the range of any function. This is a working rule. Let us consider y is equal to f of x.
देन पुट y इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में वो पुट करो. ओके, अभी चेक करना है कि y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x. फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. क्योंकि रेंज में तो y का वैल्यू चेक करना है ना, तो y का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है x के x. इफ आई पुट एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, what are the possible values? Every possible values you have to write. You cannot ignore any single, not a single value. ठीक है, सब वैल्यू पुट करना है जो पॉसिबल होगा. So since the domain of the function is real, listen, since domain of the function is real, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. वेदर द वैल्यूज ऑफ y we will get the positive or negative. क्या मिलेगा, x का कोई भी वैल्यू पुट करो. लेट अस टेक x इक्वल टू -5 सपोज. सो मॉडुलस ऑफ -5 -6 इज, इट विल बी 6 ओनली बिकॉज मॉडुलस के अंदर है, तो वैल्यू ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. Let us put x equal to 1. If I put x equal to 1, 1 minus 1 is 0. So means we can include 0 also. 0 is also a real number, right? So y का value 0 भी हो सकता है. Let us put any positive value. Say x equal to 5. 5 minus 1 is 4, which is also positive. So that means for any real values of x, what are the possible values of y? Y, look at here. Y will be close bracket 0 to infinity. ये कैसे लिखा देखो, x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 1 minus 1 0, so 0 is possible. x का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो देन ऑल्सो इट विल बिकम पॉजिटिव ओनली बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन, तो पॉजिटिव होगा. इफ आई टेक x एनी पॉजिटिव नंबर देन इट विल बी पॉजिटिव डेफिनेटली, सो पॉजिटिव. तो मतलब 0 से लेकर सब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगा. वी विल नेवर गेट नेगेटिव वैल्यू. In this case, we will never get negative values of y. Why? Because of this modulus sign. Only because of this modulus sign we will get always positive value. So that is why the range of this function, which means the values of y will be close bracket 0 to infinity open. Close bracket 0 क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होगा, including 0 all the positive values. Okay, that is why I have given here close bracket. Already I have discussed about closed interval, open interval. So that is why I have given here this bracket. You can use this bracket also. Okay, so these are the possible values of y. कैसे निकाला? रफ में चेक कर सकते हैं हम लोग ऐसा, x का वैल्यू नेगेटिव डाल के, x का वैल्यू 1 डाल के, x का वैल्यू पॉजिटिव डाल के, जो भी रियल वैल्यू पुट करो, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन द वैल्यूज ऑफ y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट इज व्हाई द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी. ओके, वी विल नेवर गेट नेगेटिव वैल्यू. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन. चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन है. फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज. लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मॉडुलस. शायद तुम लोगों को मॉडुलस का फंक्शन एक नया चीज लग रहा है, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं. चलो, से f of x is equal to, one more question number 2. Say f of x is equal to minus mod x. Say f of x is equal to minus mod x. So how to find the domain? How to find the domain and range? Look at here. This is also modulus function. So domain मतलब क्या है? Which coordinate, x or y? Domain means x coordinate. So since it is also a modulus function, so इसका मतलब भी for any real values it will always satisfy. x का कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, yes or no? So therefore here also we can say that the domain of the function is always real for any modulus function. आंख बंद करके लिख सकते हैं हम लोग. For any modulus function domain is always real number. Okay, for any modulus function domain is always real number. मतलब x का कोई भी वैल्यू डाल दो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हम हमेशा फंक्शन को डिफाइन करेगा. ओके, सो क्या लिखना पड़ेगा? The given function is defined for any real values of x. That is why the domain of this function is real. Okay, so in order to find the range, what is the first step? Let y is equal to f of x. Let y is equal to f of x, that is y is equal to minus of mod x
यस ना अभी क्या फाइंड आउट करना है, y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, दैट इज रेंज ओनली, राइट। तो y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, लेट मी पुट सम वैल्यूज, से x इक्वल टू -5 अगेन, इफ आई पुट हियर -5, मॉडुलस ऑफ -5 विल बी पॉजिटिव, दैट मींस +5, लेकिन मॉडुलस के अंदर एक बाहर एक माइनस साइन है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो वैल्यूज जाके नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके, लेट मी पुट वन पॉजिटिव वैल्यू, से 5, if I replace this x by 5, mod of 5 is 5 only, but because of this minus sign it will be again negative. Let me put 0, if you put 0, 0 is a neutral value, right, 0 is a neutral value, तो इसका मतलब है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करने से अल्टीमेटली y का वैल्यू नेगेटिव होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू x का पुट करने से भी अल्टीमेटली y का वैल्यू नेगेटिव होगा, और 0 पुट करने से भी x का वैल्यू 0 होगा, न्यूट्रल वैल्यू। सो what will be the conclusion then? How can we say that the values of y will be what? So from these examples we can say that the values of y will be -infinity to 0 close, because here we are getting all negative values। देखो क्या डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में सब पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहा था हम लोगों को, अभी यहाँ पे सब नेगेटिव वैल्यूज मिल रहा है, तो सब नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, because 0 is a neutral value, so that is why look at the shape, close bracket 0, -infinity to 0, मतलब we will never get a positive value, why? Because of this minus sign। मॉडुलस के लिए तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन मॉडुलस के बाहर ये जो माइनस साइन है उसके लिए सब नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग हियर नेगेटिव वैल्यूज। इसीलिए रेंज क्या होगा, ओपन ब्रैकेट -infinity to 0 क्लोज। अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हमेशा क्यों दिया जाता है, वो इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कहां तक जाके खत्म होगा वी कैन नॉट से, दैट इज व्हाई ऑलवेज यू हैव टू पुट ओपन ब्रैकेट हियर, ठीक है, एंड क्लोज ब्रैकेट 0, व्हाई? बिकॉज इंक्लूडिंग 0 वी कैन पुट 0 बिकॉज 0 इज ऑल्सो ए रियल वैल्यूज, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन से अगर डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए देगा तो हमेशा वो फंक्शन रियल होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए, ऑलराइट। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, नॉट नाउ दैट मॉडुलस रिलेटेड, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू √x - 1। तो चलो अभी रूट ओवर देने से कैसा होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, दिस इज ऑल्सो रियल फंक्शन। मैं बोला क्या, whenever you are asked to find the domain and range of any function, the function must be real, not imaginary, okay? तो फंक्शन अगर रियल है तो डोमेन एंड रेंज का वैल्यूज भी रियल होना चाहिए, दैट इज एक्स एंड वाई का वैल्यूज भी रियल होना चाहिए, ओके। सो हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देखो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है इट इज नॉट मॉडुलस फंक्शन, √x - 1 है। सो अगर ऐसा स्क्वायर रूट रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether the function is defined for ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन, हमेशा इनइक्वालिटी साइन से चेक करना पड़ता है, ये पॉइंट याद रखना है। अगर रूट ओवर रहेगा तो, अगर कोई फंक्शन में रूट ओवर रहेगा तो यू हैव टू चेक बाय यूजिंग इनइक्वालिटी साइन। इनइक्वालिटी साइन क्या क्या होता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस देन एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दीज आर द इनइक्वालिटी साइंस, ओके। सो whenever this square root will be given in the question, then always you have to check whether the function is defined for less than equal sign or greater than equal sign or strictly less than sign or strictly greater than sign, कौन सा साइन से ये फंक्शन को डिफाइंड किया जा सकता है, ठीक है। ये 4 साइन है, इनइक्वालिटीज का साइन है, ठीक है। इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, strictly less than or strictly greater than. So which inequality sign will satisfy? Look at here. What is the function here? √x - 1। रूट ओवर के अंदर जो टर्म है, रूट ओवर के अंदर जो टर्म है, that term must be real, that should not be negative, मतलब रूट ओवर के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, otherwise it will be an imaginary number, yes or no? मैं क्या बोला था, whenever you are asked to find the domain and range of any function, that function must be real, and if it is real, therefore the values of x and y are also real only। तो इसका मतलब अगर रूट ओवर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गया तो से √5, दिस विल बी एन इमेजिनरी नंबर, राइट। तो इमेजिनरी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा,
रूट ओवर के अंदर जो टर्म है दैट टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखो, द गिवन फंक्शन f of x is defined for x minus 1 is greater than or equal to 0. You have to check always the internal part, मीन्स रूट ओवर के अंदर जो टर्म है वो टर्म कौन सा इनइक्वालिटी साइन से डिफाइंड होगा। सो हियर क्लियरली वी कैन से दैट द फंक्शन, the complete function is defined for x minus 1 greater than equal to 0. That means x must be greater than or equal to 1. You can check अगर greater than equal to 1 means including 1, x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 minus 1 0 होगा, 0 is a real value, तो फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? Yes, of course. Greater than means we can put more than 1 also. More than 1 means say 5. So 5 minus 1, which is also real value. 6 minus 1, real value. But if I put any value like less than 1, say 0. If I put here 0, so 0 minus 1 will be minus 1 only. And root over के अंदर कोई negative value होगा तो that will be imaginary number ना. So which will not define. So that is why you have to check always by using this inequality sign. तुम लोग पूछ सकते हो कि मुझे डायरेक्ट कैसे पता चला कि greater than equal sign ही यूज होगा। तो चलो देख लेते हैं लेस देन इक्वल साइन लेके भी। इफ आई राइट से x माइनस 1 मस्ट बी डिफाइंड फॉर लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो चलो 1 तो पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 0 होगा, चलो डिफाइंड होगा। बट लेस देन 1 इफ यू टेक एनी वैल्यू, जस्ट नाउ आई हैव गिवन द एग्जांपल, इफ आई पुट से 0 इट विल बी इमेजिनरी ना, so that is why this inequality sign is not applicable. ठीक है, अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल क्यों नहीं लिया? जनरली ना लेस देन और ग्रेटर देन साइन क्यों नहीं लिया? स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग द पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट को क्यों एक्सक्लूड करें? अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो अननेसेसरी उसको क्यों एक्सक्लूड करना है? जब डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना पड़ता है, यू हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल वैल्यू। ओके, अगर एक भी सिंगल वैल्यू मिस हो गया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सो यू हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज व्हिच विल सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन। सो दैट इज व्हाई जनरली वी यूज टू टेक लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल साइन, जिसमें के वो पॉइंट भी इंक्लूड होता है। बट इफ यू टेक दिस inequalities then we cannot include the points, yes or no? So that is why you have to take less than equal or greater than equal sign. And why I have taken greater than equal sign, you know the reason? Okay, so x greater than equal to 1, so x का वैल्यू है मतलब ये डोमेन है। So therefore we can say that the domain of the function x greater than equal to 1, how will we represent in interval form? Closed bracket 1 to infinity, yes or no? Because it is going towards positive infinity. All right, so ये हो गया डोमेन का पार्ट। Now let me check the range. So to find out range, what is the first step? Let y is equal to f of x. That is y is equal to under root x minus 1. Yes or no? f of x is y x minus under root x minus 1 only. Okay. So अभी क्या find out करना है? Which value? The values of x or y? Of course the values of y only. So y का value find out करने के लिए तो x का values क्या होगा वो check करना है। So since we know the values of x must be greater than equal to 1. डोमेन से ही पता चलेगा रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, so since x must be greater than or equal to 1, let us put 1 by 1 value. 1 पुट करो तो y का वैल्यू क्या होगा? 0. 2 पुट करो y का वैल्यू क्या होगा? 1. 3 पुट करो y का वैल्यू क्या होगा? 2. Means we are getting all positive values including 0. Yes or no? So therefore the range of the function will be, look at here, the range of the function is, क्या लिखोगे? 0 से लेकर, बिकॉज इंक्लूडिंग 1 ना, तो 1 अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 होगा, तो 0 टू इंफिनिटी। डायरेक्ट ये स्टेप कैसे आया? वो सब x का वैल्यूज रफ में पुट करके चेक करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, इफ यू नो द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ डोमेन you can find out range, because x का वैल्यू ही तो पुट करके y निकल सकता है ना, तो x का वैल्यू मतलब डोमेन का वैल्यू। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर मॉडल, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो ये डोमेन रेंज का पार्ट थोड़ा सा ठीक से प्रैक्टिस करना है। फ्यू मोर एग्जांपल्स आई विल डिस्कस नाउ।
So let us continue our discussion. This question number 4. F of x is equal to under root 9 minus x square. One more square root term I have given. Okay. So और एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ वैसा मॉडल का. So फिर से सेम थिंग रिपीट करूंगा. अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है तो यू हैव टू चेक द इंटरनल पार्ट. मतलब रूट ओवर के अंदर जो टर्म है दैट टर्म विल सेटिस्फाई बाय व्हिच इनइक्वालिटी साइन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन. जनरली ये दो साइन बहुत कम यूज होता है, यूज नहीं होता है. क्योंकि व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन केस ऑफ डोमेन एंड रेंज यू हैव टू पुट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. एक भी वैल्यू मिस नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन साइन, इक्वल साइन में ही कोई एक साइन यूज होता है. ठीक है. सो वंस यू चेक द इंटरनल पार्ट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर. सो द फंक्शन f of x is defined for which inequality sign? That is 9 minus x square is defined for which inequality sign? Whether greater than equal or whether greater than equal or less than equal. If I write, say, look at here, if I write the function is defined for greater than equal to 0, the term is defined for greater than equal to 0, that means 9 minus x square greater than equal to 0 means x square must be less than or equal to 9. Yes, x square must be less than or equal to 9. So लेस देन और इक्वल टू 9 मतलब 9 हो सकता है या फिर 9 से कम हो सकता है. अगर मैं 9 से कम एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 से कम से 8, इफ आई सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर बाई 8, 9 माइनस 8 इज 1 विच इज रियल वैल्यू. ठीक है. इफ आई टेक से 7, 9 माइनस 7 2 रियल वैल्यू. इफ आई टेक से 5, 9 माइनस 5 4 विच इज ऑल्सो ए रियल वैल्यू है. सो दैट मीन्स इट इज कंफर्म दैट द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर greater than equal to 0. Now the question is, why can't we take less than equal? Look at here. If I write 9 minus x square less than equal to 0, that means x square must be greater than or equal to 9 हो जाएगा. वेरिएबल के आगे अगर माइनस साइन है तो दिस साइन विल रिवर्स. लेस देन इक्वल रहने से ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल रहने से लेस देन इक्वल हो जाता है. कब होगा ये? जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन होगा. लास्ट क्वेश्चन में वैसा नहीं था. लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल के आगे प्लस साइन ही था. ओके. सो इसीलिए ये साइन चेंज हो गया. ओके. डोंट गेट एनी कंफ्यूजन. ओके. माइनस साइन रहने से ही साइन चेंज होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है. नाउ लुक एट हियर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9. से एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 9. इफ आई टेक 10, सो 9 माइनस 10 विल बी माइनस 1. तो रूट ओवर के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा ना. तो मैं क्या बताया था? फंक्शन मस्ट बी रियल. सो दैट इज वाई हियर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस इनइक्वालिटी साइन. द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऑलराइट. सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9. तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 मीन्स एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3. तो एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यूज है, वैल्यूज बोलूंगा मैं क्योंकि प्लस माइनस ऑफ 3 का रेंज के अंदर रहेगा. सो देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड ब्रैकेट -3 से लेकर +3 तक होगा. दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू यूज, आई एम यूजिंग द वर्ड वैल्यूज नॉट वैल्यू, बिकॉज प्लस माइनस 3 है. दैट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू. -3 से लेकर +3 तक जितना वैल्यूज है सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा x का. कैसे चेक कर सकते हो? यहाँ पे अगर मैं -3 यहाँ पे x के जगह में पुट करूं तो -3 होल स्क्वायर इज 9. 9 माइनस 9 0. चलो 0 रियल नंबर है. सो देन आफ्टर -3 से इफ आई पुट -2, -2 होल स्क्वायर इज 4. 9 माइनस 4 रूट ओवर 5, इट इज ऑल्सो रियल वैल्यू. देन -1, 9 माइनस 1 8 रियल वैल्यूज. तो इसीलिए यू हैव टू राइट, यू हैव टू गिव दिस ब्रैकेट, closed bracket. Why closed bracket? Because including -3 and +3, all the possible values you have to include. ठीक है. You cannot ignore a single value. तो ये है डोमेन ये फंक्शन का. ठीक है. ये डोमेन है ये फंक्शन का. मतलब सिर्फ -3 और +3 नहीं, including -3 and +3, whatever values are there in between -3 and +3, those values also you have to include. ठीक है. So ये हो गया डोमेन. Now let us come to the next part, that is range. How to find the range? So in order to find the range of any function, the first step is
let y is equal to f of x. Let y is equal to f of x. That is, y is equal to the value of f of x is under root 9 minus x square. Yes. इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है. मैं क्या बताया था कि इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ x, दैट मीन्स इफ यू नो द डोमेन पार्ट, देन यू कैन इजिली डिटरमाइन द रेंज. सो डोमेन पार्ट तो हम लोगों को पता है, x का वैल्यू -3 से लेकर +3 तक है. So for all x belongs to close bracket -3 to +3, हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू ही पुट करना है to determine the values of y. Yes, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे -3 पुट करूँ तो -3 होल स्क्वायर 9 minus 9 0. The value of y will be 0. If I put then -2, just like this, -3 से लेकर 3 के बीच में जितना वैल्यूज है सब लिख सकते हैं. So if I put here now -2, it will be 9 minus 4, that is root 5. Then if I put say -1, 9 minus 1 is 8, root 8. If I put 0, because -3 और 3 के बीच में तो 0 भी ले सकते हैं. 9 minus 0, that is 3 only. After that, if I put then 1, it will be root 8. If I put 2, it will be root 5. If I put 3, then this will be 0. Look at here. Ascending to descending, descending to ascending फॉर्म में है ना. Ascending to descending और descending to ascending फॉर्म में है ये. तो इसका मतलब रेंज क्या हुआ? Therefore, the range of the function for all values of x -3 to +3 are close bracket 0 to 3. देखो 0 और 3 के बीच में ये सब नंबर्स रिपीट हो रहा है. root 5, root 8, here also root 8, root 5. Yes or no? तो मतलब रेंज 0 से लेकर 3 तक है. मतलब 0, 3 तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 0 and 3. In between 0 and 3, whatever values are there, those values also you have to put here. Okay, so that is why you have to give this bracket, closed interval, open interval, जहां पे जो इंटरवल जरूरत पड़ेगा. ठीक है. सो सिर्फ -3 और +3 वैल्यू नहीं है डोमेन का. डोमेन का वैल्यूज है -3 से लेकर +3 तक जितना वैल्यूज है, all the values you have to put. That is why the interval is important. So use proper interval, close interval, open interval. This is not normal bracket. Okay, इसका भी कुछ मीनिंग होता है. close interval का means including. This sign indicates that including -3 and +3, whatever values you will put here, always will get real value. ठीक है. So this is another example, number 4. One more example I will discuss. डोमेन फाइंड आउट करना इजी है, रेंज फाइंड आउट करना भी इजी है. इफ यू नो हाउ टू फाइंड डोमेन, देन इट विल बी इजी ओनली. ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. से f of x is equal to 2 minus 3x, where x belongs to R and x is greater than 0. फाइंड आउट द रेंज. सो यहाँ पे सिर्फ रेंज पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे x belongs to R दिया गया है. मतलब x means what? द डोमेन पार्ट. तो डोमेन हमेशा रियल है ऐसा बोला गया है. देखो क्वेश्चन कैसा घुमा फिरा के आता है. Here you are asked to find only the range. This is question number 5. Okay, only the range. Why no need to find the domain? क्योंकि डोमेन का कंडीशंस यहाँ पे ही दिया गया है. मतलब सब वैल्यूज यहाँ पे ही है. x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब डोमेन का पार्ट पूरा दिया गया है, सिर्फ रेंज फाइंड आउट करना है. ऑलराइट. सो बाय यूजिंग दिस कंडीशंस ओनली नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट रेंज. विदाउट डोमेन वी कैनॉट डिटरमाइन रेंज. एक्स का वैल्यूज अगर नहीं पता होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ऑलराइट. सो टू फाइंड आउट द रेंज, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू 2 minus 3x. ऑलराइट. तो अभी x का वैल्यूज जो कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन को यूज करने के लिए यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y. y is equal to 2 minus 3x. This equation is in terms of x only ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है. What you have to do? You have to express this one in terms of y. कैसे एक्सप्रेस करोगे? y minus 2 equal to minus 3x, or it can be written as x equal to 2 minus y by 3. Yes or no? x का वैल्यू 2 minus y by 3 मिल गया. क्यों निकाला? बिकॉज x का जो कंडीशन दिया गया है, बाय यूजिंग दैट कंडीशन ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y. बिकॉज हियर इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड ओनली द रेंज. रेंज मींस ओनली द वैल्यूज ऑफ y. ओके. अच्छा. सो सिंस x इज ग्रेटर देन 0 एज पर द क्वेश्चन, therefore we can say 2 minus y by 3 is greater than 0.
which implies 2 minus y is greater than 0. That means y must be less than 2. क्यों लेस देन हो गया ग्रेटर देन साइन? बिकॉज मैं क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन है तो ऑटोमेटिक दिस साइन विल रिवर्स, ग्रेटर देन रहने से लेस देन हो जाता है, लेस देन रहने से ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। सो y लेस देन 2, इसका मतलब रेंज क्या होगा? तो फिर therefore the range of the function will be less than 2 means it is going towards negative direction of infinity, so minus infinity to 2 open bracket. Now why we need to give here open bracket? Why not closed bracket? Because here strictly less than sign is there. Strictly less than means excluding the point, excluding 2. Alright, so this is the range of the function. Okay, without having domain we cannot determine range. So here the condition of the domain is given, x is greater than 0. That is why only you have to express the function in terms of y. The function is given in terms of x, but you have to express in terms of y only because of to use this condition. देखो अगर हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो y में, तो ये x का कंडीशन कहाँ पे यूज करेंगे? Here we cannot use the condition of x ना. So that is why you have to express the function in terms of y first of all. Okay, so these are the things about domain and range. तो ये सब domain and range का क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना है, फिर से क्लास 12 में भी मिलेगा, लेकिन 11 का बेस अगर क्लियर होगा तो ही जाके 12 में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। So few more questions you have to practice by yourself. Okay, so this is all about domain and range and all about relations and functions. So everything I have discussed about relations and functions. So thank you for today.